Okay, so today we are going to discuss few things about the advanced level of operations where you can make your work more comfortable or more easy with these hacks. Okay, so for example, sometimes you may get a comma separated data, जिसको हम normally CSV data बोलते हैं. Now, so CSV data, you have a CSV data, and now you got that data into the notepad, right? So like this data you can see, in this data you can see there is ID, employee name, right, job title, base pay, overtime. So first row you can see, this row is the column names, right? And after first row, you can see there are a lot of values are there, and all values are separated by comma, right? So if you see, there must be many lines, right? So if you see, there are around 148,000 lines are there. Now, what you have to do is you have to convert this data into the column format, right? So how you will do that? So let's suppose I have just selected the entire data, Control A and Control C, and I'll paste just this data over here, right? I'm pasting this data. Now you can see the entire data is there in first column. Column में पूरा data आपके पास दिखाई दे रहा है, right? But this is of no use. What I want is to separate this data column by column here in Excel. आई वांट कि ये डेटा कॉलम बाय कॉलम एक्सेल में सेपरेट होके आ जाए, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ए है, इसमें हमने क्लिक किया और इसको हम यहाँ पे डेटा में गए और डेटा में हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम, राइट? अब टेक्स्ट टू कॉलम जब हम यहाँ पे करते हैं, तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे ओपन होके आएगा. अब यहाँ पे डेलिमिटेड विद आ रहा है. तो यहाँ पे आप, यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो दैट इज सेपरेटेड बाय द कॉमर्स, right? So what simply we have to do is just next, and since it is separated by commas, so here we have to select how it is separated. So sometimes it may be separated by commas, sometimes it may be separated by semicolons, sometimes there can be data which may be may be separated by some other, like it may be dollar or it may be something else, right? So you have to select. तो जैसे ही हमने यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट किया, यू कैन सी हियर इट इज शोइंग क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन many columns, right? And then simply I can do next and finish, right? So I'll just do finish. So here you can select column by column data, और अगर आप उसका कोई पर्टिकुलर टाइप भी डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हो. सो सपोज here this is this first column, I want this column as a number, right? So you yeah, you can come here and you can put those things. So here number option is not available, so you have to put this in general. Here this is text, so just select this as text. Here this is text, select this as text. In the same way, you can do these things, and if there is a data type is there, you can select the date separately as well, right? Now here you can see there are few values in this is notes column is there, right? In notes column you can see there is nothing over there, right? तो उसको पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे ये पूरा खाली है, right? So let's see, यहाँ पे आप ये देखोगे कि जैसे यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों यहाँ पे दो कॉमा दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो जहाँ पे दो कॉमा दिखाई दे रहे हैं, हियर यू कैन सी एट मेनी प्लेसेस देयर आर टू कॉमर्स, राइट? हियर इफ यू सी, यू कैन सी देयर आर टू कॉमर्स ओवर हियर. तो यहाँ पे जो दो कॉमा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉमा क्या होंगे? ये कॉमा होंगे, जैसे जैसे ही दो कंजिक्यूटिव डेलीमीटर आपको दिखाई देते हैं, दैट दैट रेफर्स कि देयर इज अ ब्लैंक वैल्यू, राइट? तो ब्लैंक वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले स्टेटस, यहाँ पे कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो स्टेटस, एजेंसी, नोट्स, ईयर, टोटल बेनिफिट्स, टोटल पे, तो यहाँ पे टोटल पे मिसिंग है, राइट?
तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे सेकेंड रो में टोटल पे मिसिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया टेक्स्ट टू कॉलम्स एंड नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट, राइट? सो हियर यू कैन सी फिनिश। ओके, हमने इसको फिनिश किया। नाउ हियर यू कैन सी, हाँ बेनिफिट्स मिसिंग है, सॉरी 6 नंबर पे। अभी 3 4 5 6 7 ये बेनिफिट्स मिसिंग है, सबके मिसिंग है बेनिफिट्स, सिर्फ इसी का नहीं है। नहीं, राइट? सो बेनिफिट्स आर मिसिंग ओवर देयर। देयर आर फ्यू पीपल आर देयर जिनके जिनके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको डेटा बिल्कुल सॉर्टेड पोजीशन में मिल गया, जो कि वहाँ पे आपको एक जम्बल्ड पोजीशन में मिल रहा था, राइट? तो इस तरह से आप अपने डेटा को बिल्कुल अलग अलग कॉलम वाइज सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये डेटा सिर्फ आपका उसमें केवल कॉलम सेपरेटेड ही हो। ये डेटा किसी और डेलीमीटर से भी सेपरेटेड हो सकता है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन से डेटा पे काम कर रहे हो, कौन से टेबल पे काम कर रहे हो, राइट? इट इज नॉट वेरी मच नेसेसरी। चीज ये चीज क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? इजी है? देन अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज कोई कोई दूसरा डेटा है तो इसमें जैसे यहाँ पे हम 2 3 कॉलम यहाँ पे उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं आईडी एम्प्लॉय नेम मदद पे उठा लिया, राइट? और यहाँ पे हमने हम एक नया बना लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आईडी डॉलर पीएमपी नेम डॉलर और जॉब टाइटल डॉलर डॉलर एंड सैलरी, राइट? वन ए बी सी एक्स वाई सी एंड 5,000 टू बी सी बी डॉलर टू आर एंड 6,000, राइट? अगर अब इस टाइप का डेटा है, राइट, हम इसको यहाँ से उठाते हैं इस डेटा को और हमने यहाँ पे पेस्ट किया, हम दूसरे दूसरे उसमें लेके जाते हैं, राइट? अब यहाँ पे आपके पास सेपरेटर क्या है? अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉलम को सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे सेपरेटर क्या है यहाँ पे, डेलीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा सेपरेटर है वो हमारा डॉलर है, राइट? तो ये जैसे हमने यहाँ पे डॉलर स्पेसिफाई किया, यू कैन क्लियरली सी कि इट हैज सेपरेटेड ऑल द वैल्यूज, right? Next and finish, right? You can have the multiple separators as well. So suppose यहाँ पे हमने दे दिया, एक जगह पे कॉमा दे दिया, यहाँ पे भी हमने कॉमा दे दिया, right? These are the multiple separators, right? So you can work in the same manner as the multiple separator, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली अभी कर रहा है। यहाँ पे नई बुक में हम जाते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल सेपरेटर्स को भी मतलब यहाँ पे इंटरटेन कर सकते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे डेटा लिया और यहाँ पे हम डेटा डाल देते हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर रहा है क्योंकि वो उसकी मेमोरी में जा चुका है। वो वी हैव टू क्लीन दिस मेमोरी। तो जब भी रिस्टार्ट करेंगे तब ये क्लीन होगा। अभी उसके ऑटोमेटिक मेमोरी में जा चुका है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग, हम यहाँ पे एक दूसरी चीज देखते हैं। अम,
let me open another tab, another Excel, and then I'll share. So have we discussed the if condition so far? हमने if condition discuss करी है. ओके. तो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने हैं, हम यहाँ पे इफ कंडीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द डेटा वैलिडेशन पार्ट. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे इफ कंडीशन क्या होती, तो इफ कंडीशन अभी तक हमने पढ़ी थी. इफ कंडीशन इज बेसिकली condition where when we have to apply some condition and based on that we have to apply some situations, right? हमने if condition अलग अलग कंडीशन अलग अलग पार्ट्स में पढ़ी हुई है, और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी चीजें हमने, जैसे जहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस पढ़े थे वहाँ पे भी हमने देखा था. नाउ आई जस्ट on a revision basis, I'll just try to explain you that, right? So if condition क्या होती है कि when you have to uh, apply some condition based on the data situation, right? Based on data situation का मतलब है कि आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, और उस डेटा के बेस पे आपको डेटा सेग्रीगेशन करना है, राइट? सेग्रीगेशन के बेस पे आप सपोज यहाँ पे डेटा देख रहे हो, यहाँ पे ये ऐप है और ये ऐप का रेवेन्यू है, राइट? अब यहाँ पे जो भी रेवेन्यू है डेटा का, उस रेवेन्यू के बेस पे हमें यहाँ पे फाइनलाइज करना है कि रेवेन्यू अच्छा है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया गया कि अगर आपका $15,000 से ऊपर का रेवेन्यू है, तो वी कैन कंसीडर दिस रेवेन्यू एज गुड रेवेन्यू, एंड इफ दिस इज नॉट अंडर 15,000, then we if it is not over 15,000, we cannot will not categorize this, right? तो सिंपली यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो हम उसको गुड करेंगे, अदरवाइज वो ब्लैंक रहेगा, राइट? सो सिंपल कंडीशन है. तो यहाँ पे जैसे हमने लगाया इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, राइट? अब जैसे ही हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो अब अगर फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो ये भी नीचे ड्रैग होगा और ये भी नीचे ड्रैग होगा. तो अब ये नीचे ड्रैग ना हो उसके लिए हम यहाँ पे केवल यही ड्रैग ना हो, ये जो हमारा 15,000 यहाँ पे लिखा हो ये ड्रैग नहीं होना चाहिए. ये तो ड्रैग होना बनता है तभी तो वो उसको लेगा. तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे C2 को फिक्स कर दिया. अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे कि दिस इज गुड रेवेन्यू, अदरवाइज विल जस्ट प्लेस इट ब्लैंक, राइट? यहाँ पे हमने ओके किया और इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जहाँ जहाँ पे 15,000 से ज्यादा है वहां पे इसको गुड दिखा रहा है, अदरवाइज वहां पे ब्लैंक है, राइट? यही चीज आप मतलब इफ पार्ट में कुछ डाल के और कर सकते हो. तो सपोज यहाँ पे गुड है और यहाँ पे आप देख देख सकते हो ओके 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 रिवेन्यू ओके. तो यहाँ पे हमने ओके ओके कर दिया और इसको नीचे हमने ड्रैग कर दिया. तो जहाँ पे 15,000 से कम है वहाँ पे ओके ओके आ गया, अदरवाइज वो गुड आ गया. यही चीज अब आपको 15,000 से 20,000 के बीच वाले सबकी फाइंड आउट करनी है, राइट? तो अगर 15,000 से 20,000 के बीच में है तो उसको हमें गुड बोलना है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिर से हमने यहाँ पे दिया इफ, और अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है.
15,000 से ऊपर होना चाहिए और 20,000 से लेस होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एंड लगाया हमने, राइट। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, और इसको हमने फिक्स किया, राइट। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसको भी हमने फिक्स कर दिया, राइट। दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें बोलना है कि हाँ ये गुड है, अदरवाइज ब्लैंक ही रखना है, राइट। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये चार ही गुड बचे हैं। पहले यहाँ पे भी गुड आ रहा था, यहाँ पे भी गुड आ रहा था, क्योंकि ये 20,000 से ऊपर की कंडीशन अब यहाँ पे आ गई, तो 20,000 वाली लिमिटेशन लग गई, तो यहाँ पे भी ब्लैंक आ गया, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंड फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो इफ के साथ यहाँ पे हमने इफ यूज किया, दूसरा एंड फॉर्मूला यूज किया। तो एंड में व्हेन वी एक्सपेक्ट ऑल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी कंडीशन जो हमने दी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम एंड को यूज करते हैं। और जब और में हमें और कम यूज करते हैं, व्हेन वी एक्सपेक्ट at least one condition be right। हम ये चाहते हैं कि अब कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब हम यहाँ पे इस वैल्यू को हम पॉजिटिव करेंगे, अदरवाइज ये नेगेटिव होगी, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, रेवेन्यू ग्रेटर देन 15,000 एंड लेस देन 20,000 देन गुड। अगर रेवेन्यू 20,000 से ज्यादा है तो एक्सेप्शनल, एल्स एक्चुअल वैल्यू है वही हमें देनी है। तो अब यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी, मल्टीपल इफ लगाने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे पहला पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में हमें कंडीशन चेक करानी है कि जो भी रेवेन्यू है 15 से 20,000 के बीच में है। अगर नहीं है तो चेक करना है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें चेक करना है कि रेवेन्यू 20,000 से ज्यादा है। और अगर फिर भी नहीं है तो हमें फिर जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो हमें दे देनी है, राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपली दिया इफ, इफ के अंदर एंड कंडीशन, एंड में इफ दिस वैल्यू इज greater than this value 15,000 and we fixed it, then the same value is less than or equal to 20,000 and we also fix this। अगर ये होता है तो हमें बोलना है कि रेवेन्यू इज गुड। अगर ये नहीं होता है तो हमें चेक चेक क्या करना है, रेवेन्यू 20,000 से ज्यादा हो, राइट। तो इफ के अंदर इफ दूसरी हम दूसरा इफ लगा रहे हैं, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 20,000, तो इक्वल टू तो उधर कवर हो गया, ग्रेटर देन 20,000, तो हम यहाँ पे यही दे देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000, और इसको हमने फिक्स कर दिया। देन हमें देना है यहाँ पे एक्सेप्शनल, अदरवाइज कर देते हैं पुअर, या हम दे देते हैं बिलो एक्सपेक्टेशन, राइट। हमने यहाँ पे इसको बंद किया और एक और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कंडीशंस के अंदर कंडीशन लगाई हुई है, और यहाँ पे हमें जहाँ पे भी 15,000 से कम है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन 15 से 20 में गुड, और 15 से और 20 से ऊपर एक्सेप्शनल। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये पहला पहला पार्ट है हमारा, जहाँ पे चेक हो रहा है कि ये एक्सेप्शन ये 15 से 20 के बीच में है, राइट। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो गुड। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो अब यहाँ पे फॉल्स पार्ट में हम गए, इसके फॉल्स पार्ट में यहाँ पे फिर से हमने नया इफ लगाया, उसके अंदर दूसरी कंडीशन चेक करी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन हमारी इतनी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमें ये लगाना है, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जाना है।
राइट। इसके आगे आप और भी कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत क्राइटेरिया, तो आप इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ, उसके अंदर इफ, ऐसे करके बहुत सारे इफ यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं इफ के अंदर इफ, मीन्स नेस्टेड इफ कंडीशन, राइट। ये जब आप यूज करोगे तो आपको बहुत और इस तरह की चीजें आपको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने को बहुत मिलेंगी, कि क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, तो उसके लिए वहाँ पे ऑटोमेशन पर्पज से आपको, अब यहाँ पे तो 10-12 का डेटा दिख रहा है, जहाँ पे आपको एकदम से 40-50 हज़ार लाइंस का डेटा होगा, तो वहाँ पे आप इंडिविजुअली सबको स्कैन करने नहीं जा सकते। तो वहाँ पे ये कंडीशन आप लगाओगे और एक बार में आपको सारी चीजें, सारे कंडीशंस मिल जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट? हाँ सर। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो आपकी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेम वैल्यू है, एक्चुअल रेवेन्यू है, बजटेड रेवेन्यू, राइट। तो अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगर जो यहाँ पे जो भी हमारा एक्चुअल रेवेन्यू है वो बजटेड रेवेन्यू से ज्यादा है, राइट, तो यहाँ पे अ, हमें कुछ भी शो नहीं करना है। या यहाँ पे हम जो भी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, और उसी हमें हमें देखना है कि एक्चुअल रेवेन्यू हमारे बजटेड रेवेन्यू से कितना ऊपर हो गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, B23 डिवाइडेड बाई C23 - 1। और अगर ये 10% से कम होता है, ये 10% से ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना है। अगर ये 10% से वैल्यू ज्यादा है, तो हमें और यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी चेक है कि यहाँ पे B23 डिवाइडेड बाई C23 - 1, ये हमारी कंडीशन है, इट इज लेस देन लेस देन 10%। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, तो हमें क्या करना है, B23 डिवाइडेड बाई C23, एंड यहाँ पे अदरवाइज ये हमें ब्लैंक कर देना है। तो यहाँ पे देखो और कंडीशन लगाई हुई, तो और कंडीशन का मतलब क्या है, कि और कंडीशन का मतलब होता है कि जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, तो एक ये कंडीशन है, और दूसरी ये कंडीशन है, तो यहाँ पे एक ग्रेटर देन की कंडीशन लगी हुई है, एक लेस देन -10% की लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें अगर या तो 10% का वेरिएशन है, चाहे प्लस में है या माइनस में है, अगर एक्चुअल रेवेन्यू और बजट रेवेन्यू में 10% का वेरिएशन है, मे बी इन माइनस और मे बी ऑन प्लस, तो हमें यहाँ पे वो वेरिएशन देना है, अदरवाइज ब्लैंक करना है। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएशन की बात करते हैं, तो अगर हम सिंपली ये डिवाइडेड बाई ये करते हैं, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये लगभग 10.099, मतलब यहाँ पे 1%, यहाँ पे, हाँ, -1, -1 भी करना पड़ेगा, तब हमें एक्चुअल वैल्यू वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे लगभग 9.9% का वेरिएशन है, मतलब 10% से कम है, राइट। सर इसमें -1 क्यों करना पड़ेगा, क्या रीजन है? -1 करने का रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे दोनों का जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो परसेंटेज वैल्यू है, यहाँ पे हम एक्चुअली परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज वैल्यू, अगर जैसे यहाँ पे हम नॉर्मली, अगर हम यहाँ पे सपोज 23 लिखा, और अगर हम इसको आप परसेंटेज वैल्यू में चेंज करोगे, तो क्या होता है, ये 23 100% हो गया। लेकिन हमें 23 100% नहीं चाहिए, यहाँ पे 23% चाहिए। तो 23% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.23 करना पड़ेगा। अगर हमें 23 चाहिए, अभी यहाँ पे पहले मैं नॉर्मल कर देता हूँ, या परसेंटेज हटा देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल नंबर किया, तो अगर हम यहाँ पे 23% चाहिए, तो आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और अब इसको आप अगर कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे 23% आएगा, राइट। राइट। अंडरस्टूड। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे लिखते हो 1.23,
तो ये क्या हो जाएगा, 123% हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1.23 -1 कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल में पहले चेंज करते हैं उसको, यहाँ पे किया 1.23 -1 कर दिया, अरे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 1.23 -1 कर दिया, और अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 23% आएगा, राइट। इसी तरह से जब हम यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इससे इसको डिवाइड किया, तो ये 1.09% आ गया। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 110% हो गया। अंडरस्टूड। इसलिए हम यस। यहाँ पे -1 कर रहे हैं, तब ये हमें एक्चुअल परसेंटेज दिखाएगा। क्लियर है? यस क्लियर सर। है। तो यहाँ पे बेसिकली दिखा क्या रहे हैं कि अगर हमारा जो वेरिएशन है एक्चुअल बजट और एक्चुअल रेवेन्यू और बजटेड रेवेन्यू में, अगर 10% से ज्यादा का वेरिएशन है तो हमें शो करना है, अदरवाइज वेरिएशन शो नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, इज इक्वल टू, और यहाँ पे इफ, यहाँ पे परसेंट ऊपर या 10% नीचे, तो हमने यहाँ पे दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमने यहाँ पे और लगाया, राइट। और एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बजटेड रेवेन्यू -1, राइट। इसको भी हम एक ब्रैकेट में कर देते तो हमें बेटर समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे हमने, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 10%, राइट। या तो आप अभी इस पे मैं दोनों तरीके आपको दिखाता हूँ। 10%, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें या दूसरी कंडीशन है कि B23 डिवाइडेड बाई C23 -1 इज लेस देन और इक्वल टू -10%, राइट। और इसको भी हमने यहाँ पे क्लोज किया, राइट। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमें क्या, हमें हमें शो करना है क्या है, जो भी वैल्यू है वो हमें शो करनी है। तो हमने यहाँ पे दिया B23 डिवाइडेड बाई C23 -1, राइट। ये हमने शो किया, यहाँ इसमें -1, एल्स यहाँ पे हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, जब हम यहाँ पे हम स्कैन करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, अभी यहाँ पे आप इसको मल्टीपल डेसिमल में कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे 2 डेसिमल्स में यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लिया, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है, राइट। इसको आप थोड़ा सा और भी बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसमें रिप्रेजेंट करने में क्या है कि यहाँ पे ये हमारा 20% है, 80% है, जहाँ पे नहीं आ रहा है, जहाँ पे नहीं आ रहा है इसका मतलब वो हमारा वहाँ पे 10% से कम का वेरिएशन है, ठीक है। वही चीज जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई, वही यहाँ पे भी हमने इम्प्लीमेंट की, थोड़ा सा हमने फॉर्मूले में थोड़ी सी बेटर फॉर्मेटिंग यूज की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आपको अपने डेटा को बेटर वे में परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तब इन सारी चीजों को हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इसमें थ्रेशोल्ड सिंबल वगैरह को यूज करना चाहते हो तो थ्रेशोल्ड सिंबल को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड सिंबल के लिए सिंपली क्या है कि वो जो सिंबल है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, राइट। यहाँ पे वो सिंबल्स कॉपी हो गए हैं, तो ये सिंबल्स आप कॉपी करके जो आपके स्पेशल पैरामीटर्स है वहां से लेके आ सकते हो। ये कीबोर्ड में पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप इसमें जाओगे, कीबोर्ड में जाओगे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे जाओगे, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे नहीं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नहीं, और होता है।
स्पेशल कैरेक्टर कीवर्ड होता है स्पेशल कैरेक्टर कीबोर्ड। मैं बहुत पहले इसको लेके आया था। कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं वो मुझे फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब अभी आप चाहो तो इनको यहीं से कॉपी कर सकते हो। तो इसमें किया कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे फॉर्मूला में ये डाला है। हमने यहाँ पे बस फॉर्मूले की जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी। और यहाँ पे हमने फॉर्मूले को पेस्ट किया। और यहाँ पे इसकी जगह पे हमने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये दिस इज ग्रेटर देन जीरो, देन हमें क्या करना है। या यहाँ पे और कंडीशन तो होगी, दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर देना है इफ B23 डिवाइडेड बाई C23 -1। तो यहाँ पे इसके अंदर हम फिर से कंडीशन लगा रहे हैं B23 डिवाइडेड बाई C23 -1। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, देन वी हैव टू टेक दिस, अदरवाइज वी हैव टू टेक दिस। ठीक है। और इन दोनों को फिक्स करना पड़ेगा हमें। हमने ये भी फिक्स किया और ये भी हमने फिक्स कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है। और ओके किया। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास 1 से ज्यादा है वो वहाँ पे अपर अपर एरो आ रहा है, जहाँ पे 1 से कम है वहाँ पे लोअर एरो आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है सबको कि मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूले में? सबको समझ में आ रहा है? हेलो। सर। कुलदीप, राज, अंकित, जी। हाँ जी सर। ओके, तो इस तरह से आप जितनी भी वैल्यूज हैं उनको विजुअली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। ये आपके विजुअल्स इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे। और आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने में, जैसे बजट रेवेन्यू अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे आइकन सेट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपर की डायरेक्शन है, लोअर की डायरेक्शन है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आपको आइकन सेट कैसे दिखाने हैं? तो आइकन सेट दिखाने के लिए आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जा सकते हो। न्यू रूल पे गए। ठीक है। न्यू रूल पे अब यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया कि फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया आइकन सेट। और आइकन सेट में हमने दिया, यहाँ पे हमने दे दिया इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0%। यहाँ पे देखो परसेंट है। और यहाँ पे हमने वैल्यू इज ग्रेटर देन लेस देन 1%। और यहाँ पे हमने सॉरी, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन जीरो। और दिस इज एंड व्हेन लेस देन जीरो। ठीक है। यहाँ पे हमने ओके किया। और
यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, सॉरी, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने डाला फॉर्मूला। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो परसेंट परसेंट वाइज में यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं इसमें, अब हमें यहाँ पे इसमें गए, यहाँ पे मैनेज रूल्स, राइट, और ये वाला रूल हम हटा देते हैं। ठीक है, इसी वाले रूल पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अगर ये ग्रेटर देन 0% है तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 0%, और यहाँ पे भी हमें परसेंट सेलेक्ट करना है, और ये लेस देन 0 है, राइट। हमें यहाँ पे लेस देन क्यों नहीं आ रहा है ये? लेस देन यहाँ पे हम 5, ग्रेटर देन 10% और लेस देन 10% करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लेस देन में यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे विजुअली रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे आइकन, आपको आइकन सेट चेंज करने हैं, ऊपर नीचे की तरफ दिखाना है, तो आप यहाँ पे आइकन सेट भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिखाया ऊपर नीचे की तरफ हमें दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने दिया 10%, ग्रेटर देन 10%, लेस देन 10%। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दिए। यहाँ पे सेट ज़्यादा है पे, और दूसरा कर लेते हैं कोई, यही वाला कर लेते हैं, ग्रेटर देन 10%, लेस देन 10%। ओके, अप्लाई। तभी आप यहाँ पे देखो कि ये ऊपर की तरफ सिंबल जा रहा है, ये हमारा नीचे की तरफ सिंबल जा रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरह से अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बना के देख सकते हो कि हमारी वैल्यू सही गई या वैल्यू सही नहीं गई। ठीक है, बहुत सारे, जैसे एक बार मैंने एक पूरा डैशबोर्ड बनाया था, तो वहाँ पे किस कॉलेज का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट किया था। तो सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करने में क्या है कि अब वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में एक क्लास में डिफरेंट, एक हॉल में डिफरेंट क्लास के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठा ले जाने हैं, राइट। तो वो मैंने कैसे क्रिएट किया था कि जैसे मान लो ये हमारे पास हॉल 1 है। ठीक है, अब हॉल 1 में इस इस हॉल 1 की जो कैपेसिटी है वो है सपोज 60 स्टूडेंट्स की, राइट। यहाँ पे अलग अलग हॉल हैं, हॉल 1 है, ठीक है, फिर हॉल 2 है, फिर हॉल 3 है, फिर हॉल 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स बैठा ले जाने हैं। तो अम, इस वाले में सपोज यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, राइट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फिर सेकेंड ईयर के हैं, फिर थर्ड ईयर के हैं, और फिर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये 4 तरह के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। अब इस हॉल की कैपेसिटी है सबकी 60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, या चलो अलग अलग मान लेते हैं, इसकी 60 की है, इसकी 55 की है, इसकी 64 की है, और इसमें 62 की है। हर हॉल की अलग अलग कैपेसिटी है। अब यहाँ पे जो जो भी स्टूडेंट बैठेंगे उनका जो टोटल है वो इससे कम होना चाहिए, अदरवाइज वो यहाँ पे एक रेड सिग्नल जनरेट करेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे सपोज नंबर डाल दिए। अम, यहाँ पे हम पहले हमने सम जनरेट किया, सम ऑफ दिस टू दिस, पहले से हमने यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंबल डाल देते हैं कि यहाँ पे हम डाल देते हैं, हमने यहाँ पे न्यू रोल डिजाइन किया कि इसके वैल्यू के बेस पे हमने यहाँ पे आइकन सेट लिया, और आइकन सेट में रेड, ग्रीन या येलो हमें करने थे। यहाँ पे हमें रेड कर देना है। ठीक है, अगर इफ कंडीशन यहाँ पे होती है तो यूज फॉर्मूला, राइट। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि
दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सब में डॉलर आ रहा है, तो हर बार क्या है कि अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये वैल्यूज मूव नहीं होंगी। तो हमें एक कॉलम मूव करना है, तो हमने यहाँ से बी से डॉलर हटा दिया और हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है बेसिकली, कि जो आपकी B41 की वैल्यू है वो आपकी B35 से लेस होनी चाहिए। अगर ये लेस है, राइट, तब तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने और देखा, ये लेस है, तब तो ठीक है। और हमने यहाँ पे ओके किया, ठीक है। और हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ओके किया। तो यहाँ पे हमने दिया 23, 12, 56, और अभी अभी यहाँ पे ये देखो वैल्यू ऊपर हो गई, ठीक है। वैल्यू ऊपर होने पे यहाँ पे अब इसको, नहीं अभी ये इसमें और भी दो तीन चीजें डालनी पड़ेंगी, वो मैं अभी और बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल कहने का पर्पस ये है कि आप अपने डेटा को विजुअली इसी इसी तरह से रिप्रेजेंट करके लेके आ सकते हैं। इसमें थोड़ी एक दो चीजें और हैं जो मुझे भी आपको बतानी है। नेस्टेड इफ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई गेस, कि यहाँ पे जैसे हम इसके अंदर इफ लगा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग यहाँ बच्चों के मार्क्स हैं और टोटल है, और उसकी उसी के बेस पे ग्रेड या फेल पास डिसाइड किया गया है। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो नेस्टेड इफ में। और यहाँ पे जो एक्सेप्शनल कंडीशन है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज इसमें बचती है, दैट इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के लिए, हाँ ये है, राइट। अभी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में क्या है, यहाँ पे अब सपोज यहाँ पे हमारे पास चार अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है। इन चार अलग अलग स्टेट के यहाँ पे ये चारों अलग अलग वो है, डिस्ट्रिक्ट है या सिटीज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे ही हम सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग ये सबको आता है कि कैसे है ये हम लिस्ट बनाएंगे, ये सबको पता है। ये लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, सबको पता है ये। ओके, तो डेटा वैलिडेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे आप डेटा पे जाओगे, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे डेटा में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करके होता है। इसमें आप जाओगे, यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो सपोज आप यहाँ पे सिर्फ नंबर्स देना चाहते हो, और नंबर चाहते हो कि वो नंबर आपका 18 टू सपोज 60 के बीच में हो, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने 34 डाला तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 17 डाल दिया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर 65 डाल दिया तो भी ये उसको एरर रिटर्न करेगा, जैसे ही हमने बीच में डाला तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने जो वैल्यूज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करा सकते हो। इसी तरह से दूसरा दूसरा कुछ आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सपोज आपको केवल डेसिमल वैल्यू करनी है, या आपको सिर्फ डेट करनी है, या टाइम करनी है, या टेक्स्ट लेंथ करनी है, कि आपका आपका जो यहाँ पे वैल्यू आए वो सर्टेन लेंथ तक ही आए। तो वो कैसे कर सकते हो, तो सपोज यहाँ पे हमने दिया कि टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे सिर्फ जैसे रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर में जैसे एक यहाँ पे रोल नंबर हम दे देते हैं G0, नहीं, 08 349 32
एंड 5 1, राइट। तो अब ये क्या है, मान लो बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं, तो कॉलेजेस में क्या होता है कि जब उनके बच्चों के रोल नंबर डिसाइड किए जाते हैं, राइट। तो रोल नंबर डिसाइड करने में क्या होता है कि अब जैसे सबसे पहले आया किस ईयर का बच्चा है, फिर किस कॉलेज का बच्चा है, सपोज कॉलेज है 349, एंड देन किस कोर्स में है, तो कोर्स कोड है 65, और देन उसका अपना रोल नंबर है, उसका अपना सीरियल नंबर है, सपोज 100, राइट। तो ये यहाँ पे ये एक लेंथ बन जाती है इस तरह से कि यहाँ पे ये जो लेंथ है, तो अगर आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे ये लेंथ है ये, ठीक है, ये 10 की लेंथ है, राइट। अब हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे जो वैल्यूज आए वो सारी 10 लेंथ की ही है, तो आप यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया टेक्स्ट लेंथ एंड इक्वल टू 10। अब अगर यहाँ पे 10 से नीचे का कोई भी डेटा डाल दिया गया, सपोज यहाँ पे मैंने कुशल डाल दिया, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे 10 की टेक्स्ट लेंथ डालनी पड़ेगी। अब ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जैसे सपोज दिया KUSHLDWIV, अब ये 10 हो गए, इसने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। यहीं पे हमने ये नीचे भी हमने ड्रैग कर दिया और हमने यहाँ पे दिया पालिन, राइट। तो इसने यहाँ पे हमें एरर दे दी, ठीक है, यहाँ पे पालिन एनाटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर हमने ज्यादा भी दे दिया, माई नेम इज KD सिंह, राइट, तो ज्यादा भी दे दिया तो भी यहाँ पे ये एरर रिटर्न करेगा। तो जहां कहीं भी हम इस तरह से वैलिडेशन ये डाल देंगे तो वो वैलिडेशन फिर हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा, राइट। और अभी यहाँ पे अब जैसे हमने डाल दिया कि ये 23 है एंड 321 इसका कॉलेज कोड है, और 54 पोस्ट कोड है, और 101 इसका नंबर है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। अभी अब सपोज कोई बच्चा ऐसा है जो 2010 से पहले का है, तो यहाँ पे 08325 एंड पोस्ट कोड इज 34 एंड यहाँ पे 10 दे दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हमने सेम फॉर्मेट डाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही ये डाल रहे हैं, अब जैसे ही यहाँ पे हम डालेंगे 08342 एंड हमने यहाँ पे पोस्ट डाला 34 एंड 221 डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 अपने आप में ये अपने आप से ट्रिम कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जैक्ट देने की बजाय यहाँ पे हम बिटवीन लेंथ दे सकते हैं, या तो 9 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हो अपने डेटा में, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस ये सर। चीज क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अब यहाँ पे आपको लेंथ ये लिस्ट जनरेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये लिस्ट जनरेट करनी है, तो हमने यहाँ पे दिया डेटा, डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे हम गए लिस्ट, राइट। अब हम चाहते हैं कि यही जो 4 स्टेट है वही यहाँ पे आए, तो हमने यहाँ पे ये लिस्ट सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर ली और ओके कर दिया। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वही 4 स्टेट आएंगे और कोई भी स्टेट यहाँ पे नहीं आ सकता, और यहाँ पे आप नीचे नीचे ड्रैग कर दोगे तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें आ गई। अब हम चाहते हैं अब यहाँ पे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट। कनेक्शन क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट हो तो यहाँ पे जितने हरियाणा के जिले हैं वो ड्रॉप डाउन में आ जाए, हम उनसे सेलेक्ट कर पाए। अगर हम यहाँ पे यूपी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे यूपी के जिले आ जाए, यहाँ पे एमपी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एमपी के जिले आ जाए, यहाँ महाराष्ट्र सेलेक्ट करते तो महाराष्ट्र के जिले आ जाए। ऐसा हम करना चाहते हैं, ऐसा हम रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही में हमने सारे जिले डाल दिए और जो कुछ भी सिलेक्ट करो चल जाएगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए हम अब यहाँ पे कनेक्टिंग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हर बार इसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, राइट।
तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे नेम मैनेजर। रिमेंबर, पहली क्लास में मैंने नेम मैनेजर के बारे में आपको बताया, तो यहाँ पे फॉर्मूला में जाओगे, यहाँ पे नेम मैनेजर होता है, राइट। तो यहाँ पे हम नेम मैनेजर डिफाइन करेंगे। तो नेम मैनेजर में अब हमें हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें यहाँ पे 4 नेम मैनेजर है, क्योंकि इसके बेस पे यहाँ की वैल्यू डिसाइड हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नेम मैनेजर हैं, पे हमें 4 बनाने पड़ेंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, ये हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे बना दिया न्यू, यहाँ पे हमने दे दिया हरियाणा, ठीक है, अपना नाम नाम दे दिया हमने, ओके किया। दूसरा फिर से हमें हमें करना है, दूसरा है यूपी, और यूपी में हमने दे दिया सी, यहाँ पर हमने दे दिया C3 से यहाँ तक। फिर तीसरा हमने नेम मैनेजर बनाया और यहाँ पर हमने दे दिया एमपी, और एमपी के लिए हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये बन गया, और फिर एक और न्यू लिया और इसमें हमने दिया महाराष्ट्र, ओके। बी श्योर, मेक श्योर कि ये जो नेम नेम यहाँ पे हम दे रहे हैं वो नेम यहाँ से बिल्कुल सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और ओके किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 नेम मैनेजर बन गए। तो अब अगर हम कहीं भी कुछ भी लिखते हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिखा हरियाणा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो वैलिडेशन लगा हुआ है, हम वैलिडेशन क्लियर कर देते हैं यहाँ से। वैलिडेशन क्लियर करेंगे, यहाँ पे डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, ओके, और यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो वैलिडेशन है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन सारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हमने अगर इज इक्वल टू हरियाणा किया, राइट, तो अ, यहाँ पे अभी देखो एरर आ रही है, यहाँ पे अभी एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली नेम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा है या महाराष्ट्र है, ठीक है, हमने यहाँ पे नाम दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने नाम दिया तो जितने जितने भी उसके जिले हैं वो यहाँ पे आ गए। अगर हम यहाँ पे हरियाणा दिया, पूरा हमें देना पड़ेगा, अगर आप हाफ दोगे, सपोज यहाँ तक लिखा और हमने डाल दिया, तो यहाँ पे ये एरर देगा, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, हरियाणा, और यहाँ पे हमें हरियाणा के सारे जिले मिल गए। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ से इज इक्वल टू करते हैं तो हमारे हमारी वैल्यू आ जानी चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं इस सेल से, राइट। यहाँ पे हम नेम से रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे हरियाणा लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से हरियाणा लिखते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अगर हमने डाला तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने इस सेल को इस सेल के साथ में कनेक्ट नहीं किया है, राइट, अंडरस्टूड। अब हमने एक को हटाया, देखो चारों हट गए, क्योंकि वो पूरे नाम के साथ में कनेक्टेड है। एक बात समझ में आ रही जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सबको समझ में आ रही है? आरती, अंकित, कुलदीप, विशेष, राज। सर। यस सर। तो यहाँ पे इस तरह से हम नेम मैनेजर बना रहे हैं, लेकिन अब जब हम यहाँ पे इसको इसको कनेक्ट करना होगा, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? हम कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम इनडायरेक्ट करके यूज करते हैं, इनडायरेक्ट, सॉरी, इनडायरेक्ट, ये हमने फॉर्मूला यूज किया, और यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया हरियाणा, ठीक है, बुरा नहीं आ रहा है, हरियाणा, ओके। तो यहाँ पे अभी देखो रेफरेंस एरर आ रही है। रेफरेंस एरर क्यों आ रही है? क्योंकि अब हम यहाँ पे अगर हम सिर्फ यहाँ पे यूज करते हैं, डायरेक्ट हरियाणा यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू सही आएगी, लेकिन यहाँ पे हम इनडायरेक्ट के रेफरेंस भी यूज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट हम यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट जब हमें यहाँ पे डालना होगा, अब हम यहाँ पे हम गए, डेटा पे गए, यहाँ पे गए डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, यहाँ पे हमने दे दिया लेस,
और यहाँ पे हम देते हैं इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू डालनी है, जो भी यहाँ पे वैल्यू उसके सपोज उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाए, हमने यहाँ पे डाल दिया, ओके किया। अब यहाँ पे देखो आपके पास हरियाणा में, यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे सिटी आ गए, हरियाणा सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हरियाणा के सारे सिटीज आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी के सारे सिटीज आ गए। ठीक है, यही चीज आप नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम हटा देते हैं, अभी सबको इलाहाबाद हटा दिया हमने। अब यहाँ पे हमने एमपी सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि एमपी के अच्छा, ये ऊपर से कॉपी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा B13 यहाँ पे फिक्स है, ये हमें 13 यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ओके किया, यहाँ 13। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि वैल्यू आपको कहाँ पे फिक्स करनी है, कहाँ पे फिक्स नहीं करनी है। अभी यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी यहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम मिलेंगे। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई है? कैसे आप रेफरेंस कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने डायनेमिक रेंजेस, डायनेमिक डेटा वैलिडेशन के की चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, लुका छिपी है, खो खो है, लिंगोचा है, गुल्ली डंडा है। राइट, अब यहाँ पे सबके प्लेयर डिसाइड करने हैं। यहाँ पे तो क्रिकेट में कौन कौन से प्लेयर हैं, यहाँ पे फुटबॉल में कौन कौन से प्लेयर हैं, कबड्डी में कौन कौन से प्लेयर हैं, लुका छुपी में छोटा भीम है, डोरेमोन है, नोबिता है, देन गिल्ली डंडा में हल्क है, आयरन मैन है, थॉर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिसाइड की हैं। अब हम फिर से वही चाहते हैं कि जो भी हम जो भी हम गेम सेलेक्ट करें, उस गेम के हिसाब से यहाँ पे प्लेयर लिस्ट आउट हो जाए। राइट, तो सिंपली वही चीज हमने यहाँ पे भी करी हुई है। तो यहाँ पे हमने जैसे लुका छिपी सेलेक्ट किया, तो लुका छिपी के सारे प्लेयर आ गए। यहाँ पे नोबिता आ गया, और शिनचैन आ गया, डोरेमोन आ गया, पोकेमोन आ गया। ठीक है, तो ये यही चीज आप तो काम यहाँ पे भी वही किया गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर आपके पास कौन कौन सी रेंजेस है ये देखना है, तो वो देखने के लिए हम सिंपली F3 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास नेम रेंजेस हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो जैसे हमने यहाँ पे हरियाणा, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे पहले से ही ये बनी हुई है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, गिल्ली डंडा है, कबड्डी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी डिफरेंट सिटीज डाले हुए हैं तुमने। तो ये एक सिंगल का है, यहाँ पे सिटी लिस्ट डाली हुई है, और इस फील्ड को इसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सिंगल का है, लेकिन जब रेफरेंस क्रिएट करना हो कि एक जगह हम वैल्यू डालें, तो उसके उसके अकॉर्डिंग दूसरे के ऑप्शंस चेंज हो जाएं, तो ये भी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंटरेस्टिंग है ये? यस, नो, कुछ तो बोल दो यार। यस सर। फील्स लाइक कि सब सो रहे हैं, बस मैं ही यहाँ पे जग रहा हूँ और बस पढ़ा रहा हूँ। यू ऑल अवेक? रहे हो सब? यस